Good evening, class 11 students. We were doing the chapter number 5, that is laws of motion. Okay, we completed almost half of the theory. Today in this video, whatever we'll study is not actually a theory. It is in the book in the form of a theory. But to understand the theory, we have to understand few basic numerical concepts. Okay, that we'll study here. Now see, the topic is understanding free body diagram and dynamic equation of net force. Now when I say dynamic equation of net force means what? The body will have lots of forces acting on the body, but the body is moving in a particular direction with some net acceleration. Then how to make the equations of force? Not equations of motion, equations of force. Okay, so let's take few examples. For example, case 1. This is a body of certain mass m, which experiencing different forces, multiple forces. F1 towards right side, F2 towards right side, F3 towards left side, F4 towards up, and F5 towards down. These are the total different types of forces acting on the body of mass m. But the body is moving towards right with net acceleration A. Okay, so how to make the equation? So this is called free body diagram. What is free body diagram? You will have a system in a numerical. From that system, you check out the body's particular body, how many forces are acting on the body, not by the body. How many forces are acting on the body, check out, and us body ko separately, draw the figure separately from the system, take it out and show all the forces. And that is called free body diagram. And then you see where the body is moving. Okay, so this is called free body diagram. Now how to make the equations? Now see, where the body is moving in this direction. That means all the forces towards right, add them, minus all the forces in opposite direction is equals to, this is the net force. The body is moving this direction, that means net force is acting in this direction. Okay, so whatever the force is acting towards right minus the force is acting opposite direction is equals to net force mass into acceleration. Okay, this is the way of writing the equation. Next, if you see the vertical direction also force is acting, but I told the body is moving forward. That means vertical there is no motion. That means upward force is equals to downward force. Okay, let's go for this. In this also, in the free body diagram, there are multiple forces acting. F3 is acting towards left, F1 and F2 acting towards right, F4 upward, F5 downward. But the body is moving towards left. That means towards left जा रहा है, तो left का force minus right का force is equals to net force mass into acceleration. And up and down, there is no motion of the body towards up and down because the body is moving towards left. That means up force will be equals to down force. Let's go for this equation. In this, the body is moving towards upward. That means upward force minus downward force equals to net force. Net force is ma, mass of the body into net acceleration. Upward force minus downward force equals to ma. And there are forces acting along x also, but there is no motion along x axis. There is motion along only in the vertical direction. Horizontal direction में कोई forces, कोई motion नहीं हो रहा. That means F3 will be equals to F1 plus F2. Net force towards left direction is equals to net force towards right direction. I hope you understand how to make a free body diagram now. How to make a free body diagram ये तो समझ में नहीं आया. You understand what is a free body diagram and you understand how to make the equation. Okay, now these are the few special cases. Now I will take few examples and I will try to draw a free body diagram and then try to draw the equations. Okay. Okay, now before going to the first example, let's talk about two basic forces which are new to you. How it all act and when it act. First, concept of normal reaction force. Reaction force and normal reaction force are different. Okay. Reaction force is always opposite to the action. Whatever the force I am giving, exactly opposite and equal, one force will act, that is a reaction. But normal reaction is something different. Normal reaction is that whenever there is a body on surface of any other body, for example, this is a table. Okay, over the table there is a book. So book is on the surface of a table. So whenever there is any body, that is book, on the surface of another body, then this normal reaction acts. So when any body on surface of another body,
ओके जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे रखा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा. ओके हाउ इट एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कैसे काम करता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये बुक टेबल पे फोर्स लगा रहा है mg, तो ये टेबल बुक पे फोर्स लगाएगा n. सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. इन दिस केस दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, बिकॉज रिएक्शन भी यही है और नॉर्मल रिएक्शन भी यही है. एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये है सरफेस, इससे परपेंडिकुलर होगा. ओके सो किस बॉडी में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? जो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रखा हुआ है. ओके जो बॉडी रखा हुआ है किसी सरफेस पे, वो बॉडी पे फोर्स लगाएगा. कौन लगाएगा? सरफेस. सो सरफेस एक परपेंडिकुलर टू इट्स परपेंडिकुलर सरफेस परपेंडिकुलर टू itself apply a force on the body over it, that is called normal reaction. For example, let's take an inclined surface. Here is a body. अब इसका वेट तो नीचे लग रहा है mg, राइट? तो इसका जो ऊपर लगेगा दैट इज रिएक्शन, बट दैट इज नॉट नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? ये सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखा हुआ है, दैट इज इस बॉडी पे ये सरफेस एक फोर्स लगाएगा. वो फोर्स क्या होगा? नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस. ओके इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. अंडरस्टैंड? नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शन आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, टू डिफरेंट थिंग्स. याद रखना. प्लस नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शंस आर टू डिफरेंट. Okay, reaction is an opposite to the force, but normal reaction is always perpendicular to the surface and acts on a body which is on some other surface. Always perpendicular to the surface. Okay, now let's talk about next concept of tension in strings. ये tension क्या है? Tension is again are forces which act on stretched string. When the string rope threads are stretched. एक rope है जो stretched है. जैसे for example ये एक रोप है जो कि ऐसा है. सो दिस रोप इज स्लैक, इसको हम स्लैक बोलते हैं. तो यहां पे जो टेंशन वैल्यू होगा वो 0 होगा. ओके बट ये एक रोप है जो कि स्ट्रेच है, तो यहां पे कुछ ना कुछ टेंशन वैल्यू होगा. ओके कहां लगेगा, कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मास m1 एंड दिस इज अ मास m2. दो मास है, इसमें से रोप स्ट्रेच्ड है, तो कैसे कैप्च करेगा? हाउ इट एक्ट? Always opposite to the point of contact. This is a point of contact, इसके opposite लगेगा. This is point of contact, इसके opposite लगेगा. Okay, that means this tension value is acting at every point on the wire. On this thread at every point tension is T. Now how will understand both the tension value will be same or different? If the rope is continuous, the tension value will be same. Okay, but if the rope are different, for example ऐसा एक मास है m1, okay, फिर यहां पे एक मास है m2 और यहां पे रोप है, एक सीलिंग है. अब इसमें क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. इस फिगर में क्या होने वाला है? ओके इस फिगर में देयर आर, ये एक रोप है और ये एक में, ये दो रोप कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें टेंशन भी अलग अलग लगेगा. तो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऑपोजिट टेंशन लगेगा T. पॉइंट ऑफ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्लास, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. ओके चलो मैं यहां बना देता हूं, तुम इसको इसके नीचे बनाना. ठीक है, ऐसे करके. ये मास m1 है और ये दूसरा मास है m2. ऐसे करके दो मास है. ओके नाउ दीस आर टू रोप्स व्हिच आर नॉट कंटिन्यूअस टू ईच अदर, ब्रेकेज. तो इस दोनों में टेंशन अलग अलग लगेगा. कंफर्म? नाउ टेंशन कहां लगेगा? ऑपोजिट टू पॉइंट. दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके ऑपोजिट लगेगा. दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके ऑपोजिट लगेगा. ओके एंड बोथ द टेंशन वैल्यू सेम बिकॉज द रोप इज कंटिन्यूअस. ये भी रोप स्ट्रेच है, इसमें भी टेंशन लगेगा. कहां लगेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट, बट टेंशन वैल्यू विल बी डिफरेंट. इसका जो वैल्यू होगा, इसमें दोनों tt लिखा है बिकॉज दिस होल वायर टेंशन इज सेम. This whole wire tension will be same, but this tension value will be different from this tension value because the rope is not continuous. Okay, I hope you understand. Let's take one more example. For example, we have a pulley. Over the pulley, we have two masses, m1 and m2. Okay, यहाँ पे वेट लग रहा है m1g, यहाँ पे टेंशन लगेगा. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑपोजिट, वायर स्ट्रेच है. यहाँ पे वेट लगेगा m2g, यहाँ पे टेंशन लगेगा t. Now both the tensions will be same. Why? Because the rope is continuous. It is not breaking. It is continuous over the pulley. So tension कब लगता है? Whenever the strings are stretched.
कहां लगता है? ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंशन सेम कब कब होगा? जब तक पूरा रोप कंटिन्यूस है तब तक टेंशन वैल्यू सेम है. इफ द रोप इज डिसकंटिन्यूस, टेंशन वैल्यू विल चेंज. I hope you understand whatever I have taught you here. So you understand what is a normal reaction? Always acting on the body which is on other surface, and the force is acting perpendicular to the surface. Okay, tension you understand. Now let's talk about example of understanding free body diagram. So we understand what is the free body diagram, but we do understand how to draw the free body diagram. Okay, we understand how to make the dynamic equation of net force. Let's use those concepts and use these two forces expression, two special types of force condition to make a free body diagram in a system. For example, this is example 1. We have a system where we have an inclined plane of angle theta. Okay, where we have two masses M1 and M2 which are connected with a rope over a pulley. Okay, now we have to see what are the forces acting on this body. In this body, one force is acting M2G towards downward. Okay, in this body, one force is acting M1G towards downward. Bas. And there is a rope and they are stretched. So one tension will act in this direction, one tension will act in this direction. Clear? हो गया? अब ये इस बॉडी के सरफेस पे है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा. थोड़ा इसको ऐसे लिख देता है, सेंटर में जोड़ के. ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, now is there any other forces? Now I am saying the body is moving like this. It is moving down and this body is going that direction, and the whole system is going in this direction. ऐसे करके ऐसे जा रहा है. Okay, so if I say this body is moving downward with acceleration a, that means this body is moving upward with acceleration a. Confirm? Understand? पहले मैंने फिर कोई forces I did not show you initially. I showed you only two bodies. बस forces I am thinking. ठीक है, मैं सोच रहा हूं फोर्सेस के बारे में. इसका मास है मान लीजिए, मैं सोच रहा हूं फोर्सेस. तो क्या क्या लग रहा है? एक वेट लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, एक टेंशन लगेगा ऑन द स्ट्रिंग ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. नेक्स्ट, आई एम कंसीडरिंग द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड. ये इधर जा रहा है, वो मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है ना? इन दिस केस, इन एग्जामिनेशन इट मे हैपन कि बॉडी इधर जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है. मैंने यहां जान रहा हूं, मैंने मान लिया कि इधर जा रहा है. ओके, सो व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, then since it is connected with the rope, then this body will move this direction with acceleration a. Now, next, we didn't study friction, so I am not talking about friction right now. I am imagining that this surface is smooth. Okay? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा कि स्मूथ है, then we have to consider friction also. So I am imagining that the surface is smooth. Okay? Surface smooth, that means no friction is happening. But if I say surface, if in the numerical surface is smooth not written, तो बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. सो लेट कंसीडर F इज द फ्रिक्शनल फोर्स. मान लेता हूं, फ्रिक्शन भी लेते हैं. चलो, फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू मोशन. अगर बॉडी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा. क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लगा बिकॉज इट इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस. इस बॉडी में तो कोई सरफेस पे नहीं रखा हुआ ये बॉडी. दिस बॉडी इज नॉट ऑन एनी सरफेस, दैट मींस देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन. There is no friction also. Okay, so I have drawn all the forces. Okay, now the question is how to make the equations. Equations कैसे बनाओ? तो इस बॉडी के साथ काम करते हैं. For M2, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ये M2, इसमें एक फोर्स नीचे लग रहा है M2G, एक फोर्स ऊपर लग रहा है T, और बॉडी नीचे जा रहा है A. इसका फोर्स फॉर्मूला क्या होगा? नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स. बॉडी नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, उसका ऑपोजिट वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स. नेट फोर्स इज व्हाट? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. ओके, नाउ इफ यू वांट टू मेक अ इक्वेशन फॉर m1, द बॉडी इज मूविंग दिस डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? t, और उसका ऑपोजिट F2. M2G तो नहीं लग रहा, M1G तो नहीं लग रहा. So, अब यहाँ पे एक गलती होता है students, what they do, you have to be very confirm that there are no other forces acting in along this direction. There are no other forces acting along this direction. You have to be very confirm. How you will get confirmation? By resolving all the forces. इस डायरेक्शन में T इधर काम कर रहा है, F इधर कर रहा है. इस फोर्स को N1 को अगर रिजॉल्व करोगे तो N1 is perpendicular to this,
n cos 90 और cos 90 is 0, मतलब n का resolution in this direction not possible. Try to understand what I'm saying, ना? वैसे देखो, मैं वापस बात करता हूँ. m1 ये हो गया, कैसे बनाऊं? ये हो गया m1. ओके, m1 में क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है m1g इधर, एक लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इधर, एक लग रहा है टेंशन इधर, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इधर, एंड द होल बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a. नाउ सिंस द होल बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद, दिस इज व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम. मेरा क्वेश्चन ये है कि अलोंग दिस डायरेक्शन वी नीड ऑल द फोर्सेस बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस तरफ वाला फोर्सेस माइनस उसका ऑपोजिट वाला फोर्सेस इक्वल्स टू नेट फोर्स. अब तुम्हें देखना है क्या यही दो फोर्सेस अलोंग दिस डायरेक्शन है या नहीं. सो इन दोनों को छोड़ के वी हैव फ्यू मोर फोर्सेस n and m1g. So you have to see whether any component of m1g is acting in this direction or not. Do you understand? Any component of weight is acting in this direction or not. We need to be very confirm about it. पहले चेक करना पड़ेगा एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तब अच्छा, तब ओके फाइन. अगर कर रहा है then you missed it, then you're gone. Okay, so similarly I have checked. पहले n का देख रहे हैं. n is making 90 degree with this line. So n का कंपोनेंट अगर मैं इधर निकालूं तो n cos 90 आएगा, that is 0. तो n का कोई कंपोनेंट इस तरफ काम नहीं करेगा. बट m1g is not making 90 degree with this angle. तो अब m1g को रिजोल्व करना पड़ेगा. कैसे रिजोल्व करेंगे? सीधा सीधा, हाँ, ये थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा. सपना है? सपना नहीं आया बेटा. सो लेट्स गो फॉर इट. देखो कैसे पता करते हैं. ये वाला है, ये ऐसे करके ऐसे बना दो, ये एंगल थीटा है. ठीक है, यहां से एक पैरेलल खींचो, इससे पैरेलल. ये थीटा है तो ये थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर? तो लेट मी डू वन थिंग. आई हैव नॉट ड्रॉ दिस फिगर हियर बिकॉज दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. सो लेट्स ड्रॉ द फिगर सेपरेटली. चलो यहां बनाते हैं. तो ये हो गया m1g का इक्वेशन. चलो यहां बनाते हैं अलग से एक बॉडी. यहां पे m1g था. ओके, ये एंगल थीटा था. देन यहां से एक डॉटेड लाइन खींचो. ये थीटा तो ये थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट. ओके, यहां से एक यहां खींचो और यहां खींचो. क्यों? बिकॉज m1g का रिजोल्यूशन चाहिए मुझे यहां पे और इससे परपेंडिकुलर यहां पे. ओके, नाउ दिस टोटल एंगल इज 90. तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. दिस इज थीटा. टोटल एंगल इज 90. फिर से ये टोटल एंगल कितना है? 90. यहां से इस डॉटेड लाइन से यहां तो 90, जिसमें ये 90 माइनस थीटा है. तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा. तो m1g इज मेकिंग एंगल थीटा. तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा? m1g cos थीटा. इसका रिजोल्यूशन टूवर्ड्स, तो ये फोर्स इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, तो जिस तरफ थीटा एंगल बनाता है वो m1g cos थीटा हो जाता है. और m1g cos थीटा से जो परपेंडिकुलर निकलेगा, m1g cos थीटा से जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो क्या होगा? m1g sin थीटा. ओके, तो देखो आप, मास वेट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. वी आर कंफर्म नाउ कि वेट का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में काम कर रहा है. सो इफ आई डिड नॉट रिजॉल्व दिस वेट देन वी लूज वन फोर्स, देन द इक्वेशन विल बी रॉन्ग. सो मुझे पता चल गया कि m1g is making angle theta. Okay, so this component will be m1g cos theta and there will be one more component which is acting in this direction. and ये सब तो मैंने वेक्टर से पढ़ा है. ये फोर्स जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है उस तरफ cos theta कंपोनेंट काम करेगा और cos theta से जो परपेंडिकुलर काम करेगा वो क्या काम करेगा? m1g sin theta. Okay, so I hope you understand each and everything class. So now your free body diagram is over. तो यहां पे एक हिडन फोर्स था जो कि मुझे नहीं दिख रहा था. ओके, अब तुम इक्वेशन बनाओगे. अब बॉडी कहां जा रहा है? बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो उस तरफ वाला फोर्स T माइनस उसके ऑपोजिट वाला फोर्स m1g sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. T ऊपर जा रहा है ना, उधर जा रहा है, तो ऊपर तो भी बोलूंगा आई एम गोइंग लाइक दिस. So that side force minus opposite side forces equals to net force, mass into acceleration. Mass was m1. Clear? Okay. Next, there are other forces also acting.
ये दोनों फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, बट डिड द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन? नो, दैट मीन्स ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, दैट इज m इक्वल्स टू m1g cos theta हो गया. So this is a free body diagram. Understand class? I hope you understood each and everything. Please repeat the video again and again to understand this part, because when you do the numericals you will face this type of things. Now you can do the numericals also, okay, after reading this video. After seeing this video you can go to the numericals and you can practice the numericals. Okay, so first what we did, see, we have got a system. First we drawn the basic forces: weight, tension, normal reaction, friction. These are some basic forces, okay. Then I see where the body is moving, okay. With respect to the body moving, I show the friction also. Then wherever direction, whichever direction the body is moving, I am just like this, in this, the body is moving downward. So there is only one force acting here, there is one force acting here. So there is no panga with this body, because there is no hidden forces here. But in this case, one tension was acting and one friction was acting, and the body is moving this direction. But other than tension and friction, there are other forces also acting. Now we need to be confirmed, like, is there any component of these two forces which are acting in this direction? बस वो चीज ध्यान रखना है. Okay class, now we will go to the actual topic which is there in our book. We discuss much extra part, whatever we need to understand to do those numericals. We understood. Let's go to the next topic of the book. Okay class, now next topic is apparent weight of a man in a lift. This topic is very interesting class, very interesting, and we actually, most of us don't know. Okay, but we do day-to-day life every day these things, huh? Whenever we go to a shopping mall or when we go up a flat of like almost 7 to 8 floors, we use a lift, right? Okay, we use escalator in city center, right? So when we use those things, actually my weight is changing continuously. Okay, मेरा weight change होता है, जो weight मेरा है वो weight होगा नहीं मेरे को. नहीं, क्यों होता है ऐसा? Actually weight change नहीं होता है, weight जो है वही रहेगा. Weight is mass into g. Mass मेरा जो है वही रहेगा. The problem with this is with the weighing machine. अच्छे से सुनना. The problem is with weighing machine, not with our weight. What is the way? How the weighing machine work? ये समझो आप, हाँ? So what I've written out here, weight of man is mg. The weighing machine measures normal reaction force value. Weighing machine मेरा वेट मेजर नहीं करता है क्लास. हम सारे धोखेबाज हैं, हमको धोखा दिया जा रहा है. हम तो धोखा करते भी हैं, हमको धोखा मिलता भी है. मशीन्स भी हमको धोखा देते हैं. जो वेइंग मशीन है ना बेटा, वो वेइंग मशीन हमारा वेट मेजर नहीं करता. वो वेइंग मशीन हम पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो मेजर करता है. ओके, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेइंग मशीन. वेइंग मशीन जो हमें मेजर करेगा ना, हमें मेजर करके देगा ना, वो नॉर्मल रिएक्शन है, एंड दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट. इसलिए मैं एपरेंट वेट बोल रहा हूं, बिकॉज माई ट्रू वेट इज mg. दिस इज माई ट्रू वेट mg. बट जो वेइंग मशीन है, दैट डजंट मेजर माई वेट, माई ट्रू वेट. इट मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन. पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जो वेइंग मशीन करता है वो क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है. और नॉर्मल रिएक्शन को ही मैं एपरेंट वेट बोलता हूं. ओके, तो बस अब इसीलिए मेरा वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट मेरा चेंज नहीं होता है, वेट मेरा कांस्टेंट है, लेकिन जो वेइंग मशीन जो चीज मेजर कर रहा है वो चेंज हो रहा है. राइट टू अंडरस्टैंड. मेरा वेट चेंज नहीं हो रहा, मेरा वेट mg ही है, मेरा वेट ट्रू वेट ही है. बट द थिंग विच आई एम यूजिंग टू मेजर द वेट, that is weighing machine. Weighing machine don't measure our weight. Weighing machine measures the normal reaction, and the normal reaction is changing from different system to different system. How? See here. Let's take a small example. For example, we are standing on a level surface. Okay, ये एक level surface है, इसमें ये weighing machine लगा हुआ है. This is a weighing machine. इसके ऊपर बंदा खड़ा हो गया, तो अब बंदा ने weighing machine में फोर्स लगाया mg, weighing machine ने बंदे में फोर्स लगाया normal reaction. weighing machine ने कौन सा मेजर किया? n. बट इन दिस केस दोनों इक्वल है ना. दैट मीन्स द एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट. इसीलिए जब हम वेइंग मशीन से अपना वेट को मेजर करते हैं ना क्लास, तो वेइंग मशीन को एक लेवल सरफेस पे रखा जाता है. अगर तुम इसको इंक्लाइंड सरफेस पे रख के मेजर करोगे ना, तुम्हारा वेट उल्टा पुल्टा दिखाएगा, तुम्हारा एग्जैक्ट वेट नहीं दिखाएगा. ओके, क्योंकि लेवल सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन एंड mg आर इक्वल. तो वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर किया, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन और वेइंग mg दोनों इक्वल है, इसलिए वेइंग मशीन ने कोइंसिडेंटली सही वेट मेजर कर लिया. लेकिन जो वेइंग मशीन ने मेजर किया, वो क्या मेजर किया क्लास?
तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो कौन सा होगा? वेइंग मशीन रीडिंग समझते हो ना? जो वेइंग मशीन शो कर रहा है वो कौन सा है? N शो कर रहा है. And that is a coincidence that N and mg are equal. So indirectly it's showing our true weight. Clear? So the true weight is TW. I'm just shortcut में TW लिख रहा हूँ, AW लिख रहा हूँ, apparent weight. You write in a notebook full form. Okay? अब यही पंगा हो जाएगा यहाँ पे. अब वेइंग मशीन कहाँ रखा हुआ है? एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है. तो जब बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे रखा है तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा होगा ना m1g. बट अब नॉर्मल रिएक्शन तो इस तरफ लग रहा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन. तो अब नॉर्मल रिएक्शन और mg तो इक्वल नहीं है ना क्लास. नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वेट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो इन दिस केस जो वेइंग मशीन होगा, वेइंग मशीन उसका रीडिंग क्या होगा? वेइंग मशीन रीड्स क्या? n and that is not equals to mg. Therefore अब यहाँ पे in this case true weight cannot be shown by the weighing machine. इसे खुद से लिख दोगे. So this thing happening with the weighing machine. That's why we see our apparent weight, the weight which appears. We cannot see our true weight always in a lift. Okay? तो ये तो मैंने दो स्टैटिक सिस्टम ले लिया. बॉडी कहीं सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा. सिस्टम जहां पे वहीं पे है. जस्ट सरफेसेस अलग अलग करके दिखा दिया मैंने तेरे को कि वेइंग मशीन n मेजर करता है और sometimes n is equals to mg, sometimes n is not equals to mg. So when n is equals to mg, when it is a level surface, in those cases my actual weight is shown by the weighing machine. But if the surface is at inclined surface, then the actual weight cannot be shown by the weighing machine, because in those cases the weighing machine measures the n and n is not equals to mg. Something like that happens with the lift also. But in lift what happens? Inclined तो नहीं होगा, but lift is moving ना. So when the lift started moving, then n will not be equals to mg. Why? How? Let's see this. Okay, now see. Under the topic apparent weight of a man in a lift. First one, lift moving upward with constant acceleration a. मतलब पूरा lift ऊपर जा रहा है with constant acceleration a. So I've drawn a small figure. This is a lift. Inside the lift we have a man. Okay, now what are the forces acting on the man? One is weight mg. Another is normal reaction. This weight mg is on man by gravity. Normal reaction on man by the floor of the lift. These are the two forces. These are the two forces acting on the man. And the whole body is moving with acceleration a upward. That means this man is also moving upward. तो अब इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये डायनेमिक मोशन है. बॉडी ऊपर जा रहा है. तो अब यहाँ पे एन और एम जी इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि ये डायनेमिक मोशन है. ओके, तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा. सिंस द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स एम ए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन. सी, बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं. एम जी फोर्स ऑन द बॉडी बाय ग्रेविटी, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी बाय द सरफेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट. दो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन बॉडी डायनेमिक है, मतलब बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है. अगर मूव नहीं कर रहा होता तो एन इक्वल्स टू एमजी होता, बट बॉडी तो ऊपर जा रहा है, मतलब नेट फोर्स का इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो बॉडी ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स एम ए. तो यहां से मुझे क्या निकालना है? एपरेंट वेट. एपरेंट वेट मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग बाय एपरेंट वेट? एन वैल्यू. तो व्हाट इज एन? एमजी प्लस एन ए. तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? एन इक्वल्स टू एमजी प्लस एन ए, वेयर एमजी इज व्हाट? ट्रू वेट. तो mg plus, that is what? True weight plus something is normal reaction. That means apparent weight is more than true weight. n is the apparent weight which is equals to true weight plus something. True weight के साथ और भी कुछ ऐड होके आएगा apparent weight. मतलब apparent weight बड़ा है true weight से. So in this cases weight increases. Clear? mg plus आया ना, actual weight, true weight plus something, that means weight increases. Now let's take the same condition. Lift moving downward with constant acceleration a. अब नीचे जा रहा है with constant acceleration a. Again, the body will have two forces, mg downward, normal reaction upward. But now the body is moving downward. That means downward force minus upward force. Downward force mg minus upward force equals to net force. यहाँ से n निकालो, n will go that side. So what is n? mg minus n. तो यहाँ पे देखो mg true weight minus something is n. That means true weight बड़ा है. True weight से कुछ subtract करेंगे तब जाके n आ रहा है. मतलब true weight is more than the apparent weight. इस केस में weight decrease हो गया. जो apparent weight है n का वैल्यू mg से कम दिखाएगा.
ओके मतलब यहाँ पे अगर वेइंग मशीन लगा दूं तो मेरा वेट अगर 50 केजी है तो वो 40 केजी दिखाएगा, कम दिखाएगा। यहाँ पे अगर मेरा वेट 50 केजी है तो ज्यादा दिखाएगा, 55 केजी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे mg प्लस आ रहा है, यहाँ पे mg माइनस आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दिस केस वेट डिक्रीजेस। ओके नेक्स्ट, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो नीचे जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? एक्सीलरेशन 0, बस ये है, उल्टा फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स equals to net force, but acceleration is 0 because it is uniform velocity. That means mg minus n equals to 0. That means mg equals to n. That means यहाँ पे क्या हो जाएगा, true weight and apparent weight are equal. So now when the lift is moving upward with constant velocity instead of constant acceleration, okay, then the weighing machine will show the exact reading. These things you need to understand instead of mugging up. Try to understand what I'm saying, class, because यही से conceptual questions आ जाएंगे. Okay, तो लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेइंग मशीन एग्जैक्ट वेट दिखाएगा. ओके जितना बॉडी का वेट है उतना ही वेट दिखाएगा. नाउ अगेन these two things again are very important and quite interesting cases. Okay, these are the two basic cases. Upward जा रहा है with constant acceleration, downward जा रहा है with constant acceleration. These three are few special cases. Let's check out this one. Lift undergo free fall. What is the meaning of this? Free fall मतलब क्या बताओ. तो इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी है तो उसमें दो फोर्सेस लगे होंगे, एक mg नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है with some acceleration equals to g. कोई body is going under gravity, that is called free fall. That means the lift is going down with acceleration equals to acceleration due to gravity. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, नीचे जा रहा है, that means mg minus n, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स equals to net force ma, but what is it, g, mg minus n equals to mg, so mg will go that side, mg minus mg equals to n, n कितना आ गया 0, तो वेइंग मशीन 0 वेट दिखाएगा. ओके एंड we feel weightlessness. That means हमें ऐसा फील होगा कि हमारा वेट ही नहीं है, हम हवा में रहेंगे थोड़ा बहुत. ओके हमें वेट फील ही नहीं होगा एक्चुअली. ओके नाउ अब देखो, तुम ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो लिफ्ट जो नीचे ऊपर आता है वो किस एक्सेलरेशन से आता होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा से या कम से या इक्वल से? अगर जो भी लिफ्ट ऊपर नीचे करता है, कोई भी शॉपिंग मॉल में चला जाओ, जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर नीचे करता है, क्या वो जी के बड़ा है, जी से कम है, क्या जी से ज्यादा है? क्या जी के बराबर है, जी से ज्यादा है, जी से कम है? अगर बराबर हुआ तो हम तो हवा में उड़ेंगे ना. वी फील वेटलेसनेस. ऑफ कोर्स इक्वल नहीं हो सकता. अगर इक्वली होता तो मुझे वेट में ये लिफ्ट का इतना जरूरत क्या है, सीधा कूद जाओ. अगर मुझे a इक्वल्स टू g स्पेस से नीचे जाना है तो मैं डायरेक्ट कूद ना जाऊं, मुझे लिफ्ट का जरूरत क्या है, और कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा. तो लिफ्ट का जरूरत इसलिए होता है क्योंकि मुझे नीचे और ऊपर उठने के लिए g से बहुत ही कम एक्सेलरेशन से हम ऊपर नीचे करते हैं. g is 9.8 meter per second square, but if you go to a lift acceleration is maximum 2 to 3 meter per second square. ओके तो लिफ्ट का जो केस है ना, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी से बहुत कम होता है. अदरवाइज अगर जी के ही एक्सेलरेशन से नीचे ऊपर करना है तो हम डायरेक्टली कूद जाएंगे. लिफ्ट होने का क्या जरूरत है, लिफ्ट का कोई जरूरत ही नहीं है. ओके सो एक्सेलरेशन हर टाइम जी से कम होता है. दिस यू कैन नोट इट डाउन समवेयर in normal day-to-day life that acceleration of any lift is always less than g and it is approx 2 to 3 meter per second square. ओके तो अब मेरे पास बचा ये दो केसेस. तो जब ये केस होता है तो क्या होता है, वी फील वेटलेसनेस. अब देखते हैं तो ये केस होगा तो क्या होगा. अगर लिफ्ट ऐसे एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो ग्रेटर देन जी है, तो देखते हैं क्या होगा. सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इन दिस द लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड, दैट मींस बॉडी नीचे जा रहा है. इसमें फोर्स एक लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन. ओके लेकिन दैट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g. सो लेट्स मेक द इक्वेशन फर्स्ट.
पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर ये कंडीशन डालेंगे। नीचे जा रहा है दैट मींस व्हाट, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहां से m कितना आ रहा है, एम जी माइनस एम ए, तो m कॉमन g माइनस ए। अब देखो वहां a इज ग्रेटर देन g लिखा हुआ है, तो सिंस a इज ग्रेटर देन g दिस इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगा ना आंसर। a बड़ा है g माइनस ए बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब आदमी मर जाएगा बेटा। नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में था ना, नेगेटिव आ गया दैट मींस नॉर्मल डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, दैट मींस हमारा सर जाके फ्लोर में टकरा जाएगा और नॉर्मल डायरेक्शन यहां एक्ट करेगा सरफेस के ऑपोजिट। सो इन दिस केसेस प्लीज राइट इन ओन लैंग्वेज दैट द हेड ऑफ द पर्सन विल हिट द सीलिंग ऑफ द rope lift and that person may die at that moment. So if the lift is going downward with acceleration greater than g, then what happens? The head of the man will hit the ceiling of the lift and it may lead to life loss. Okay, so इसलिए हर time acceleration of the lift is always less than g and is quite less. I hope you understand everything. Now see, हम तो यहाँ पे लिफ्ट के साथ काम किए हैं, बट यही लिफ्ट का केसेस न्यूमेरिकल्स में पूछ देता है जिसमें लिफ्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन विल डू मॉन्की ऊपर चढ़ रहा है विद अ थ्रेड, तो ये भी कुछ इस टाइप ऑफ लिफ्ट होगी। मॉन्की ऊपर जा रहा है यूजिंग अ रोप, तो जब मॉन्की ऊपर जा रहा है यूजिंग अ रोप तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, मॉन्की का वेट नीचे, एक रोप में टेंशन लग रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बना वहां से निकालो। सो ट्राई टू अप्लाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, now see, the next topic is connected motion. ये कोई टॉपिक नहीं है बेटा, it's just a system. Now the system which I am discussing here, the system is one pulley, two masses. Okay, what is connected motion? Nothing but motion of masses with ropes and pulleys. Masses जिसके साथ रोप लगे हुए और पुल्ली के साथ घुमा फिरा के लगा हुआ है, those are called connected motions. ओके, अब मैं जो सिस्टम लेके यहाँ पे काम करूंगा वही सिस्टम तुम्हें एग्जाम में दिया रहेगा, ये जरूरी नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने जो एक एग्जांपल नहीं कराया था, एक मास में इंक्लाइन सरफेस में ऐसे करके, एक इंक्लाइन सरफेस है जिसमें एक मास है जिसमें एक पुल्ली है, और ये भी एक कनेक्टेड मोशन ही है। ओके, जस्ट इसमें एक इंक्लाइन सरफेस आ गया। सो हम कोई फिक्स कनेक्टेड मोशन के साथ डील नहीं कर सकते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में ऐसा एक कनेक्टेड मोशन है जिसमें एक पुल्ली है और दो मासेस है। व्हाट इज माय एम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ न्यूमेरिकल कांसेप्ट अगेन। माय एम इज दैट व्हिच मास इज मोर, दैट इज गिवन टू यू, यू नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑन द रोप। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो अब मैं देखता हूं इसमें होगा क्या। सिंस मास 2 बड़ा है मास 1 से, मतलब ये नीचे जाएगा बॉडी और ये ऊपर जाएगा। तो मान लो ये नीचे विद एक्सेलरेशन ए जा रहा है, क्योंकि मास 2 बड़ा है तो ये फुली स्ट्रेट लाइन केस है, तो ऐसे का कैसे मूव होगा, ये बॉडी ऐसे करके कैसे जाएगा। ओके, क्योंकि ये मास बड़ा है। ओके, ना ये बॉडी जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये बॉडी उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। हो गया, तो इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक m2g नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है। इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक m1g नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है। दोनों टेंशन सेम होगा बिकॉज द रोप इज कंटिन्यूअस। तो बस अब इक्वेशन निकाल। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका फॉर m1 इक्वेशन क्या होगा, ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। हो गया ना। फॉर m2 में नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू m2 है। ओके, नीचे वाला फोर्स है। नाउ यू गॉट टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है, ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू एंड टेंशन का वैल्यू। ओके, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टेंशन टेंशन कट जाएगा, वहां से ये आ जाएगा, जॉब इज डन। ओके, सो दोस थिंग्स आई एम नॉट शोइंग यू हियर। ऐड बोथ द इक्वेशंस। अगर ये ऐड करोगे तो टेंशन टेंशन विल कट डाउन फ्रॉम द, यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। Okay, then you substitute the acceleration value here, you get value of tension. That's all. That is all about connected motion. That is not a big issue here. Okay, I hope you understand what is basically connected motion and what I am trying to show you here. Whatever I have shown here, these equations, whatever I have shown, whatever the system I have taken here, these will not be equal to the exam.
Okay, in exam, you may have some other motions, you may have some other system. Your job is to learn how to make the equation. Your job is to learn where the body is moving. Okay, that's all for this video class. Thank you very much. In the next video, we will start friction.